Hello student, welcome back in another video of class 9th science. In this video we start chemistry chapter, first chapter of class 9th science, matter in our surrounding. In this chapter we are going to take a overview of about matter, the types of matters, okay, solid, liquid, gas, okay, interchange of the state of matter, Kelvin, Celsius, scale, etc. Okay, some students are messaging me that sir, chemistry chapter yet not started. So today we start chemistry chapter, matter in our surrounding. So what is matter? Anything that occupies space. Anything that occupies space. Suppose this is a matter. Okay, marker is matter, the chair is matter, your books are matter. Okay, these are the examples of matter. If I put this marker on my hand, okay, so it occupies the space of my hand. So matters that anything that occupies space and has mass. So this marker having some mass, okay, and is felt by senses is called matter. Is called matter. It is simple definition: anything that occupies space and has mass. So these are known as matter. Okay, so in this chapter we are going to study about particles of nature of matter, particle nature of matter, second state of matter, three state of matter are present: solid, liquid and gas. Interchange in state of matter, fourth, evaporation and boiling of matter, and last topic of this chapter is Kelvin and Celsius scale of the matter. Okay, it is very interesting topic and simple chapter also. Okay, सिंपल सी बात है भी, आपसे कोई पूछे भी मैटर होता क्या है, ठीक है, आपसे ये बाई चांस पूछ ले भी मैटर व्हाट इज मैटर, ठीक है, तो मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है. ओके, सो ये मार्कर है, ये किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है. ये किसका एग्जांपल है? एक सॉलिड मैटर का एग्जांपल है. और मैं अगर आपसे पूछूं ऐसा कोई एग्जांपल दो कि जो मैटर नहीं है, तो आप सोचोगे क्या हो सकता है ऐसा चीज़? तो हमारी जो शैडो होती है, ठीक है, छाया जो होती है, वो मैटर नहीं है. लाइट जो आ रही है वो मैटर नहीं है, ठीक है, तो ये मैटर नहीं है. लेकिन एयर क्या है? एक मैटर है. क्यों? क्योंकि ये एयर किससे बनी हुई है? डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस से बनी हुई है, ठीक है, तो एयर क्या एक मैटर है. फायर क्या एक मैटर है, ठीक है. सॉलिड सब्सटेंसेस है, जो लिक्विड सब्सटेंसेस है, वो सभी क्या है? मैटर है, ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर. व्हाट इज पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर? Characteristic of particles of matter. First characteristic of particle of matter is they are continuously moving. They are continuously moving because they are having kinetic energy. Because in particles kinetic energy is present, so they are continuously moving. Okay, so particles are always continuously moving like this. So they are having kinetic energy. Second characteristic of particle of matter is they having space between them. They having space between them. IPS, interparticle space is present between them. Okay, suppose two particles are there. In between the two particles some space is present. This space is known as interparticle space is present between the two particles. Okay, and third characteristic is they attract each other. They attract each other. Okay, so the two particles are attracting each other. This is known as interparticle force of attraction. This is known as interparticle force of attraction is present in the particles of matter. So these are the characteristic of particle of matter. Okay, now we understand these concept by some activities. Our first activity is for first characteristic. They are continuously moving. They are continuously moving. We do one activity. Suppose I have a glass. मेरे पास एक गिलास है, उसके अंदर मैंने वाटर लिया हुआ है, ठीक है. अब इस वाटर के अंदर मैं इस वाटर को हिलने नहीं दूंगा, एक स्टेबल एक स्टेट के अंदर इसको रख दूंगा, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, एक ड्रॉपर से इसके अंदर इंक डालूंगा, रेड कलर की, ब्लू कलर की, अलग कलर की एक मैं इंक इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है. थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ तो वाटर का कलर कैसा हो जाता है? जैसा इंक का कलर था, थोड़ा लाइट होता है, ठीक है. तो अब ये आपने देखा होगा भी जितने भी ये जो
आया था यहाँ पे, मैटर मैंने इसके अंदर डाला वाटर के अंदर, तो ये क्या किया इसने, अपनी जो काइनेटिक एनर्जी थे इसके थ्रू ये क्या हुआ, सारी ग्लास के अंदर पानी था उसके अंदर ये फैल गया, क्योंकि जो इंक थी इस इंक के पार्टिकल्स के अंदर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। इस काइनेटिक एनर्जी से ये क्या हुआ, पूरे वाटर के अंदर फैल गया। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम क्या एक्सप्लेनेशन निकालते हैं, पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, पार्टिकल्स हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर मैक्सिमम होती है और किस में लो होती है, सॉलिड के अंदर ये मिनिमम होती है। सॉलिड के अंदर मिनिमम क्यों होती है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास अरेंज्ड होते हैं इस टाइप से, उनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस भी बहुत कम होता है, लेकिन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बिल्कुल नज़दीक ये होते हैं, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, कुछ ना कुछ होगी ज़रूर लेकिन कम होगी। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, गैस के अंदर। गैस के अंदर क्या होती है, कोई पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर हैं, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, तो उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और लिक्विड के अंदर क्या होगी, एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड ज़्यादा होती है। और सबसे कम किसमें, सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी, और सबसे ज़्यादा किसमें, गैसेस के अंदर। अब सेकंड एग्जांपल को लेते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ, अभी पार्टिकल्स के बीच के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ इंटर पार्टिकल स्पेस है। ठीक है, अब मेरे पास ये सॉलिड है, ये पार्टिकल से बना हुआ है, अब इस पार्टिकल के बीच में भी, इन पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो है, लेकिन वो स्पेस बहुत माइन्यूट है, बहुत ही कम है सॉलिड के अंदर। और अगर मैं गैस का एग्जांपल लूँ तो पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, तो उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम इन गैस एंड मिनिमम इन सॉलिड। पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ओके, अभी मैंने ये समझाया था कैसे होता है, जैसे टू पार्टिकल्स हैं, इनके बीच के अंदर कोई ना कोई स्पेस जरूर होता है, सॉलिड में ये क्या कम होगा। ठीक है, मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड, एज कंपेरिजन टू सॉलिड, लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैक्सिमम इन गैस, ओके, मैक्सिमम इन गैस। ठीक है, अब इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये एक्टिविटी करते हैं। मेरे पास एक ग्लास पानी से भरी हुई है, पानी से है, हाफ है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर शुगर डाली, फिर मैंने उसको मिक्स किया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, शुगर पूरी उसके अंदर मिल गई। अब वो कैसे मिल गई उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, स्पेस था। ठीक है, अब उन स्पेस के अंदर जाके कौन अरेंज हो गया, शुगर पार्टिकल्स। ठीक है, तो वहाँ जाके क्या हुआ, शुगर पार्टिकल अरेंज हो गए। किस टाइप से हुआ, देखो ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, सपोज दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मैंने इसमें शुगर मिलाया, तो ये शुगर जो इनके बीच के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, इनके बीच में जाके यहाँ अरेंज हो गया। ठीक है, तो लेवल तो वही रहा क्योंकि इनके बीच में स्पेस था, वहाँ स्पेस में क्या आ गए, शुगर पार्टिकल्स आ गए, और ये क्या थे, वाटर पार्टिकल्स थे। जब मैंने मिक्स किया तो वो क्या हुआ, उसके अंदर मिक्स हो गया, उन जो पार्टिकल स्पेस था, इंटर पार्टिकल स्पेस था, वहाँ जाके वो शुगर पार्टिकल क्या हुए, अरेंज हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू पार्टिकल्स। और दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैक्सिमम इन सॉलिड, मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में ये मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अरेंज हो चुके हैं, पास पास, बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं, तो इनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उससे कम किस में होगा, लिक्विड के अंदर, सबसे कम किस में होता है, गैस के अंदर, और नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल कम ही होता है, नेग्लिजिबल होता है। कैसे, गैस के पार्टिकल क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो दूर दूर से अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये हम इसको कंप्रेस करेंगे, इस गैस को अपने कंप्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे पास आएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसको कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस करते जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में चेंज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, और कंप्रेस करो और कंप्रेस करो और कंप्रेस करो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड में चेंज होते इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो गैसेस के अंदर ये नेग्लिजिबल होता है, इंटरमीडिएट किस में होता है, लिक्विड के अंदर, और मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड के अंदर। अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अपने वाटर टैप देखा हुआ, वाटर टैप अपने घरों में यूज़ करते हैं। अगर मैं इस टैप को खोलूँ और पानी आने लग जाए, अब इस पानी के बीच के अंदर मैं अगर अपनी उंगली डालूँ ऐसे, ठीक है, पानी गिर रहा है, वाटर गिर रहा है, अब इस वाटर के अंदर मैं ऐसे उंगली डालूंगा तो वाटर क्या होगा, इस टाइप से साइड में हटेगा। ठीक है, साइडों से ये बहने फ्लोट होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे जाके वापस से क्या होगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, वापस उनको नज़दीक ला रहा है, इसलिए तो क्या हो रहा है, वो वापस पास में आ रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं अपने आयरन नेल। अगर आयरन नेल को मैं हथौड़े से पीटूं तो वो टूटेगा नहीं, अगर ज़्यादा फोर्स डालोगे तो टूट जाएगा, लेकिन वो टूटता नहीं है क्योंकि उनके अंदर ये सॉलिड है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये टूटेगा नहीं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रिजिड होगा। ठीक है, तो ये आसानी से टूट नहीं सकता। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड टॉपिक of this chapter, state of matter. Okay, there are three kind of state of matter: solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. First of all we discuss about solid. What is solid? Okay, solid सब जानते हो ये क्या है, solid है। अब मैं सिंपल सा समझाता हूँ, ये solid है। अब इसके अंदर मैं पूछूँ आपसे, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ज़्यादा है। इंटर पार्टिकल स्पेस कितना है, बहुत कम है। ठीक है, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, और इनकी क्या एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट शेप है इस सॉलिड की। आई बात समझ में, ये क्या है, अंडरस्टूड, एक डेफिनेट शेप लिए हुआ है। तो सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब इसकी बाउंड्रीज है, डिसाइडेड है, इसका साइज़ क्या है, एक डिसाइड है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है इसके पास। रिजिड है, सॉलिड क्या है, रिजिड है, ठोस है ये। ठीक है, इनकॉम्प्रेसेबल, इसको मैं कॉम्प्रेस नहीं कर सकता, मैं इसको किसी टाइप से दबा लूँ तो इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने इरेजर यूज़ करते हैं तो वो कुछ ना कुछ कॉम्प्रेस हो जाता है, लेकिन इतना कॉम्प्रेस नहीं होता जितनी गैस कॉम्प्रेस होती है, जितना लिक्विड कॉम्प्रेस होता है। लेकिन सॉलिड उतना कॉम्प्रेस नहीं होता, तो ये क्या होता है, इनकॉम्प्रेसेबल होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, अगर मैं इसको तोलूँगा तो इसका एक डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मास होगा। मान लीजिए मैं ये 100 ग्राम का है तो ये इसका डेफिनेट मास है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर आप देखोगे तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एज कंपेरिजन टू सॉलिड क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब ये फार होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े दूर होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कुछ कम होगा एज कंपेरिजन टू सॉलिड। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सॉलिड। ठीक है, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप मतलब मैंने वाटर को किसी भी के अंदर डाल दिया तो वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, मैंने ग्लास के अंदर क्या डाला, वाटर डाला, तो वाटर ने किसकी शेप ले ली, ग्लास की शेप ले ली। आई बात समझ में, तो इसकी नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है इसकी, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइडिटी है। लिक्विड के अंदर क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। फ्लूइडिटी नहीं है तो इसलिए सॉलिड क्या है, दे आर हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज, बट लिक्विड डू नॉट हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज। जिसमें डालोगे उसी की बाउंड्री ले लेते हैं, उसी के जैसा ये बन जाता है। दे आर हैविंग फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर। लो कंप्रेसिबल एज कंपेरिजन टू गैस, एज कंपेरिजन टू गैस, कुछ ना कुछ कंप्रेस जरूर होता है। अगर ज़्यादा इसको कंप्रेस करते जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर भी वहाँ वर्क करेंगे, सीधा नहीं होता। अगर मैंने पानी को दबाऊँ तो मैं सॉलिड में चेंज हो, ऐसा नहीं होता।
वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या होते हैं, मेज़र होते हैं, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम, ये डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है इनके अंदर, डेफिनेट वॉल्यूम लिए होता है, मतलब मेरे पास 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर उसका क्या वॉल्यूम है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट गैस। अब गैस के अंदर आप देखोगे तो पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स क्या है दूर दूर है। एयर एग्जांपल ले लो, एयर के अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर है। इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। जैसे घरों के अंदर हमने गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी जाती है, एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको क्या करते हैं कंप्रेस करके डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। गैस के पास भी फ्लूडिडिटी होती है, दे आर हैविंग फ्लूडिडिटी। हाई कंप्रेसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को अपने कंप्रेस करके किसी के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। पिस्टल से उसको कंप्रेस करके किसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे सिलेंडर में भरते हैं तो किससे, हाईली कंप्रेसिबल गैस है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, अपने चारों तरफ एयर है, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये हो गए स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टेट ऑफ 3 काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टेबल फॉर्मेशन में आपको इधर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरचेंज इन मैटर, इंटरचेंज इन मैटर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये 2 टाइप से हो सकता है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को चेंज कर दें तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, और गैस किस में चेंज हो सकती है, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हो सकता है, सॉलिड में, और सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो सकता है, गैस के अंदर। बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को अपने चेंज करेंगे तो भी क्या हो, गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड किस में हो जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एक सिंपल अपने घरों के अंदर एग्जांपल लें, आइस, ठीक है। अगर आइस मैं टेम्परेचर हीट दूँ आइस को, ठीक है, आइस को अगर थोड़ा वो टेम्परेचर देता जाऊँगा, आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होगी किस में चेंज होगी, लिक्विड के अंदर। आइस क्या था, सॉलिड, थोड़ा मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दिया, हीट देते ही ये क्या हुआ, किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। थोड़ा और टेम्परेचर देता जाऊंगा लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर निकलते ये क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, वेपर के अंदर, वाटर वेपर के अंदर, तो वो किस में चेंज हुआ, गैस के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड, लिक्विड किस में चेंज हुआ, गैस के अंदर, ठीक है। अगर वहाँ देखें अपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी उसी के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो वो चेंज हो जाता जाएगा, होता जाएगा। इन सभी की स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। भाई सॉलिड गैस के अंदर चेंज होता है तो सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस सॉलिड में चेंज होता है तो उसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। अब सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इन सभी की स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो यू रिवाइज दिस चैप्टर, you revise this topic, and next video we discuss about next topics. Thank you students.